back to Epilepsy Thursdays. I'm Casey and Accept Epilepsy. So, throughout the month of August, we are talking about epilepsy lifestyle. I've already told you what epilepsy lifestyle is, that we cannot have the same lifestyle that a person who does not have epilepsy can lead. We have to follow a certain set of rules or regulations, or rather, the apt word would be norms, that a normal minion does not need to follow. So last Thursday we were talking about the daily fights. रोज के जो झगड़े होते हैं उनके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने खाली 2 पॉइंट्स के बारे में बात की. और वो लास्ट वीक के 2 पॉइंट्स अब इस बार हम कवर करने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली, एज I had previously mentioned in last week that I couldn't cover all the 4 points which previously I was going to, but I could only cover 2 points since the topic had already become topic since the video had already become so long that I could not cover all the topics, so I'm carry forwarding the remaining 2 topics this week. कारण आपण सगळे 4 पॉइंट्स कवर नाही करू शकलो मागच्या आठवड्यात, म्हणून जे काही 2 उरलेले पॉइंट्स आहेत जे आपण ह्या आठवड्यात बोलणार आहोत, म्हणूनच ह्या आठवड्यात कुठलाही प्रश्न घेतला जाणार नाही. नो क्वेश्चन विल बी आन्सर्ड because we already have a lot to talk about. But don't worry, the questions will resume from next week onwards, so not to worry about that. So let's get on to the remaining 2 topics. So we spoke about stigma and taboo, कलंक ज्याला म्हटलं जातं. हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात की लास्ट हफ्ते. We also spoke about memory loss. बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे माइंड से निकल जाती है, उसके बारे में भी बात की हमने. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकेशन. सो पीपल ऑलवेज आस्क मी द सेम क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू हैव बीन ऑन मेड्स? वेल, इट हैज़ बीन 23 years this June or July, I'm not sure, that I have been on medications. Yes, it has been that long that I have been taking medicines. गेली ह्या जून का जुलैमध्ये 23 वर्ष झाली जे मी औषधं घेतेय. आणि हो, दररोज औषधं घेतेय मी गेली 23 वर्ष. The only time that I did not intake medicines was that one day. Out of 23 years, it has like for 12 hours I was off the medicines, and that was because I was on video EEG, which is that I was in the hospital already and they wanted to induce seizures so that they could record it on video and the machine would read it as well. So that was the only time that I was taken off the medicines. But later on, after a whooping record of 14 focal seizures and God knows how many absent seizures and auras later, I was given a sedative to put me just go to sleep, because I could not sleep. So a lot of sedatives were injected into me after that. So I can't technically say that I have been completely off medicines. So yeah, there were a lot of sedatives, still couldn't put me down. So yeah, it has been 23 years since I have been on medicines. अब लोग ये हमेशा यही सवाल करते हैं कि अगर आप 23 साल से मेडिसिन खा रहे हैं तो आप बोर नहीं होते क्या?
मेरा जवाब है नहीं। हम बोर कैसे हो सकते हैं? हमें जिंदा रहना है तो हम बोर नहीं हो सकते। हमें दवाई खाते रहना है अगर हमें जिंदा रहना है तो। क्या होगा अगर दवाई खाना छोड़ दिया तो? सीजर्स आएंगे। हाँ, तो वो तो वैसे भी आ रहा है। बिल्कुल, वो तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन सीजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कंट्रोल में है। अगर दवाई खाना हमने छोड़ दिया तो जो हर दिन हर घंटे सीजर्स आएंगे वो कंट्रोल में आ रहे हैं। उतने ज़्यादा सीजर्स नहीं आ रहे अगर हम दवाई कंटिन्यूसली खा रहे हैं तो। दवाई से मैंने बहुत बार ये मैं कह चुकी हूँ, बार बार लगातार मैं ये रिपीट करती रहती हूँ, दवाई से आपकी एपिलेप्सी गायब नहीं होने वाली। औषधांनी तुम्ही बरे होणार नाही आहात। औषधं तुमचे जे सीजर्स आहेत ते कंट्रोल करायला आहेत। आपको जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं, ना कि मिर्गी को गायब करने के लिए। मिर्गी का कोई इलाज नहीं है। आपके दौरे कंट्रोल करने के लिए वो दवाइयाँ हैं तो आपको खानी है। Most of the times people say, but I'm so bored. I have been eating pills every single day. It is so annoying. Haven't you been having food every single day, or rather 4 times a day? If you're watching this video, then you are at least eating food twice a day. You have been drinking water, I don't know how many times a day. You do that, right? You go to the washroom to do your business how many ever times a day on a regular basis since you have been born. Haven't you been doing that? So, just pop those pills. Change your perspective towards pills. If you keep thinking that, oh my god, another pill that I have to pop. If you look at it that way, then it is going to be a villain in your story. But if you change your perspective, if you start thinking that, okay, I have food, I just need to pop that pill. The pill won't be a villain anymore. 1 pill, 2 pills, 3 pills, how many ever pills you are on. There was a point when I was on 10 pills, a cocktail of pills. But that is to help you. अगर हम यही सोचते रहे कि दवाई खाना मतलब वही हमारे विलन है, अरे बाप रे हमें कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती है, ओ माय गॉड मैं तो तंग आ गई हूँ या तंग आ गया हूँ, व्हाटएवर इट इज। अगर आप इसी नज़र से दवाइयों की तरफ देखते रहेंगे तो आप ज़रूर तंग आएंगे। हमें तंग नहीं होना है, हमें लड़ना है। तो अपना नजरिया बदलिए, दृष्टिकोन बदला आणि आयुष्य बदलतं। आपण जेवतो ना, आपण रोज किती वेळा जेवतो, किती वेळा खातो, मध्ये मध्ये काहीतरी करत असतो ना। सिंपल सी बात है, हम दिन में एक बार तो फोन अपना चार्जिंग को लगाते हैं ना, फोन को भी चार्ज होना पड़ता है भाई। अगर हम फोन टाइम टू टाइम चार्ज कर सकते हैं, आपण जर वेळेवरती जेवू शकतो तो दवाई क्यों नहीं खा सकते? नजरिया बदलिए, दृष्टिकोन बदला, अपसुक जग बदलेल। So yeah, change the perspective. You really need to change your perspective when it comes to taking pills, and you have to continue taking your medication no matter what. If you want to survive, you have to take those medicines. They are not your enemy. They are your buddy. The next point that was, yes, this is going to be a long video as well. Being confused. So, which month did I speak of?
I'm sorry, I keep forgetting. Memory loss. Where is it? Oh, why can't I find it? Oh, that was because it was in 2019. Okay. In February 2019, 2019, that was last year. Last year in February, I spoke about the medicines and their side effects. So, one of the side effects that the medicines cause is mood swings. A person with epilepsy, because of their AEDs, that is anti-epileptic drugs, we experience mood swings. A lot of them. What happens is no doctor is going to tell you that you are going to go through that beep. कुठलाही डॉक्टर कुठलाही न्यूरोलॉजिस्ट तुम्हाला हे सांगणार नाही आहे की कारण आम्ही ही जी काय औषधं तुम्हाला देतोय कारण तुम्ही ही औषधं खाताय म्हणून तुमचे मूड्स वर खाली होत राहणार आहेत. तुम्हाला नाही सांगितलं जाणार आहे. आपको कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि इन दवाइयों की वजह से आपके जो मूड्स है वो ऊपर नीचे होने वाले हैं. नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, पर ये ऐसा होता है. The side effect of those medicines are major mood swings. So one of the daily fights that a person with epilepsy has to fight is the mood swings. Like there are times when our mood just changes. You are chill, you're calm, and then it's like being borderline bipolar sometimes, wherein you are like angry and agitated, and then you get anxious, panic mode. There are so many emotions that a person with epilepsy goes through, and they don't have any logical reasoning behind it. कोई लॉजिकल आप अगर उनसे पूछे कि भाई तुम क्यों चिढ़े हो, अभी तो शांत थे 2 सेकंड पहले, अभी तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, अगर ये सवाल आप उनसे पूछे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे. बहुत बार ऐसे होता है कि गुस्सा आ जाता है और खुद ही खुद को पूछ लेते हैं कि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है. हमारे खुद के पास रीज़न नहीं होता. और बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि अभी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे अलग लोगों से बात करके इतने सालों के बाद मुझे ये पता चला है कि ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स है, दवाइयों के ये साइड इफ़ेक्ट्स है. लेकिन जब आप यंग होते हैं, जब आप पहली दफ़ा वो मेडिसिन खा रहे हैं, तब आपको ये पता नहीं चलता कि भाई हम क्यों इतने हमारे मूड इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं. अभी चिड़चिड़ कर रहे थे, अभी हम शांत हो गए, ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं पता चलता. और ये उस इंसान को काफ़ी हद तक कन्फ्यूज कर देता है. स्वतःच कन्फ्यूज होतो ती व्यक्ती की आत्ता तर मी शांत होते, आत्ता परत मी हसते, आत्ता अचानक मला रडावंसं वाटतंय, असं का होतंय. ह्या गोष्टीने ती व्यक्ती खूप कन्फ्यूज होते. आणि हा जो रोजचा झगडा आहे की का मला असं वाटतंय, का मी एवढ्या मूड स्विंग्समधून जातोय किंवा जातेय, हा रोजचा झगडा आहे. हे जे कन्फ्युजन आहे हे रोजचं आहे. अँड इट्स नॉट फनी. It's so not funny because it confuses the beep out of a person. How to handle those mood swings. How to project even after knowing what is causing you, even after knowing the crux of the matter that okay, these are the side effects of the medicines that I am on. But from within, a person is agitated, a person is experiencing certain moods, but they have to have a different face in front of another person. And that fight is, oh my god, draining and exhausting. Which leads us to the topics that we were going to talk today.
So today's topic is rather emotions, the emotional upheaval that a person goes through. ये जो रोलर कोस्टर की तरह ना हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि थैंक्स टू द मेडिसिन्स, जो हम मेडिसिन्स खाते हैं उसकी वजह से. सो जैसे कि मैंने अभी कह रही थी कि मूड स्विंग्स को हैंडल करना है, उसी हिसाब से हमें हमारे इमोशंस को भी हैंडल करना है ना. क्या होता है कि हम खुश नहीं हो सकते, ज़्यादा एक्साइट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, जब भी हम ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जब भी हम ज़्यादा सैड हो जाते हैं, हमारी जो नर्व्स है ना वो ट्रिगर कर देते हैं सीजर के लिए. हाँ जी, हम ज़्यादा एक्साइट हो जाए या ज़्यादा सैड हो जाए, ज़्यादा खुश हो जाए, ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, कुछ भी जो ज़्यादा होता है, जो हम नहीं वो हम खुद को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम एंड को जाए तो सीजर तो आनी है. त्यामुळे आम्हाला सतत एका ब्ला झोनमध्ये असं इकडेच राहावं लागतं. कधीही अति सुख किंवा अति दुःख, अति एक्साइटमेंट किंवा अति डिप्रेस्ड, अति काहीही आम्ही करू शकत नाही जे सोसायटी समाजाप्रमाणे जे कोणी नॉर्मल असतं, ती व्यक्ती जे काही त्यांचे इमोशन्स अनुभवू शकते, तसे आम्हाला येतात, आतले आत आम्ही अनुभवू शकतो, पण आम्हाला ते दाबून टाकावे लागतात. जर जास्त आम्ही सॅड झालो तर स्वतःला खेचून परत ह्या लेवलला आणावं लागतं. ही जर लेवल ब्ला ज्याला म्हटलं जातं, जी नॉर्मल लेवल असते. अति दुःखी झालो तर स्वतःला खेचून परत ह्या ब्ला लेव्हलवरती आणावं लागतं. अति खुश झालो किंवा एक्साइट झालो तर परत स्वतःला खाली खेचावं लागतं आणि ह्या लेव्हलवरती मेंटेन करावं लागतं. कारण कुठेही आम्ही फार जास्त वर खाली उड्या मारल्या तर आम्हाला सीजर येणार आहे. We have to maintain that line of bladum. Yeah, that's just something that I have come up with. The line of bladum. It is also known as, technically it is known as seizure threshold line, but I love to call it line of bladum. We can't be too excited emotionally, we can't be too stressed out, we cannot be too sad, we cannot be too happy. We have to stick to our line. We have to stay blah all the time. Yes, when we are acting happy, we can just a bit, not much, because we will end up having a seizure. We will end up triggering our own seizure. So we have to stay blah all the time. The side effect of it is, yes, there is a possibility that because of the fact that you have to stay blah all the time and you have to fight the urge of being happy, you can emotionally disconnect with people around you. That tends to happen. So you're in a situation where everyone is happy for something or they are sad for something, whatever it is. You keep pulling yourself back to that line, threshold that you have to maintain, which somehow in the long run, not like immediately, but in the long run, what happens is you start detaching yourself from emotions. Emotional detachment, that tends to happen a lot.
and you stop feeling emotions after a point. You fake it till you make it. Unfortunately, there are so many people out there who fake their emotions, who fake smile, who fake cry, because they don't want to come across as being weird. So they start faking it. But once you start faking it, what happens is you start detaching yourself from the situation that you are in, emotionally, that is. You start detaching yourself, and that can be very, very disturbing mentally, because you're not feeling anything anymore. फार फनी आहे ही गोष्ट, की कारण तुम्हाला ती लाईन मेंटेन करायची आहे, कारण तुम्हाला सतत त्या ब्ला झोनमध्ये राहायचं आहे. म्हणून काय व्हायला लागतं की तुम्ही लोकांना दाखवता की तुम्ही खुश आहात, तुम्ही लोकांना दाखवता की तुम्ही दुःखी आहात, पण ॲक्च्युली तुम्ही नाही आहात. कारण तुम्ही कधीही दुःखी झालात की तुम्ही परत स्वतःला खेचून त्या लाईनमध्ये आणताय, कधी खुश झालात की परत स्वतःला खाली खेचताय. तुम्ही सतत त्या एका लाईनमध्ये असल्यामुळे बऱ्याच वेळेला काय होतं की तुम्ही खोटं वागू लागता. लोकांना तुम्ही दर्शवू लागता की हो मी खुश आहे, हो मी दुःखी आहे, और वॉट एव्हर त्या सिच्युएशन प्रमाणे. ती जे काय त्या क्षणी जी घटना घडली आहे, की त्या क्षणी जर तुम्हाला काही इमोशन दाखवणं गरजेचं आहे, तर तुम्ही ते इमोशन दाखवायला लागता. आणि त्यामुळे काय होतं की आतल्या आत कुठेतरी तुमच्या ज्या भावना आहेत त्या मरू लागतात. मी म्हणणार नाही ओके मरू लागतात हा एक चुकीचा शब्द ठरेल, आय एम सॉरी फॉर दॅट. कुठेतरी ना तुम्ही स्वतःला एक तटस्थ वागू लागता. Oh, I'm sorry, I just got a message. एक डिस्टन्स मेंटेन करू लागता तुम्ही लोकांपासून, आणि ज्याला आपण इमोशनल डिटॅचमेंट म्हणतो तसे वागू लागता. अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब हम वो लाइन मेंटेन करते हैं तब हम कई बार हमारे जो एक्चुअल इमोशंस है वो लोगों को दर्शाना बंद कर देते हैं. हम नहीं दर्शाते कि हम खुश है, दुखी है, वट एवर इट इज़, हम नहीं दर्शाते. और उसकी वजह से हम इमोशनली कहीं पे तो खुद को ना अलग करने लगते हैं सिचुएशन से, लोगों से, और ये हानिकारक हो सकता है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना. हाँ जी, you have to go to a psychologist or psychiatrist. Seek help for this, because it is harmful for your mental health in the long run, and you cannot be a person who has detached himself, herself, thyself from the emotions that they are feeling. And that happens at a very subconscious level. You are not doing that on purpose, but it starts happening at a very subconscious level till the time you realize all of a sudden ki, oh, I'm not feeling anything. Which is very, very dangerous, as it takes you away from being human. त्यामुळे सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं फार गरजेचं आहे, सायकायट्रिस्टकडे जाणं फार गरजेचं आहे. कारण आपल्याला एका तिराहितासारखं सतत कुठल्या तरी सिच्युएशनकडे बघणं पॉसिबल नाही आहे. आणि तसं जर करायला लागलो तर आपले इमोशन्स ॲक्च्युली मरतील, जे आपल्याला होऊ द्यायचं नाही आहे. त्यामुळे कधीही आपल्याला असं वाटू लागलं तर सायकॉलॉजिस्टकडे जा, सायकायट्रिस्टकडे जा. तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की बापरे ते खूप पैसे घेतात, तर तसं नाही आहे. तुम्ही जसे एका डॉक्टरकडे जाता तसेच मानसिक स्वास्थ्यासाठी तुम्हाला एका वेगळ्या डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे, जे आपल्याला बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाते हैं कि वो साइकाइट्रिस्ट का बड़ा आलीशान क्लिनिक होता है,
जिसमें आप जो मर्ज़ी चाहे उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है तो नहीं जी। रियलिटी में साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का क्लिनिक इतना आलीशान नहीं होता और वो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो इस डर से कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, तो इस डर से खुद को उनके पास जाने से ना रोके, क्योंकि वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। आप एक बार जाइए। अगर आपको नहीं पता किसके पास जाएं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है epilepsy_warrior_queen, epilepsy warrior queen। उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए। तो ऐसे मत सोचिए कि आपको हेल्प नहीं होगी, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। त्यामुळे कृपया मला कॉन्टॅक्ट करा। That's all for today, and we will be continuing because it's already like past 26 minutes. It's a really long video. We will be continuing talking about the lifestyle, the fights that a person with epilepsy has to adhere to no matter what, next Thursday. Till then, stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.